خواہ بیٹی ہو یا پوتی، وہ جو ایک لڑکی ہے خواہ بیٹی ہو وہ بھی ایک لڑکی ہے، خواہ پوتی ہو وہ بھی اولاد میں ایک لڑکی ہے. اللہ نے اس کی بیٹی پوتی کی بات ہی نہیں کی، اللہ نے بات کی اولاد میں ایک مؤنث. شروع میں اولاد کی بات کی اور آخر میں کہا وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر اولاد میں ایک لڑکی ہو، وہ لڑکی بیٹی بھی ہو سکتی ہے، وہ لڑکی پوتی بھی ہو سکتی ہے، بلکہ اس سے نیچے جائیں تو وہ لڑکی پوتے کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے، جس کو ہم وراثت کی اصطلاح میں پوتی ہی کہیں گے. یہ تمام تفصیلات آپ سے پڑھ چکے ہیں. تو جب بھی ایک لڑکی ہوگی اسے آدھا حصہ ملے گا کل کرتا ہوا. لیکن میں نے آپ کے سامنے پچھلے لیکچر کے آخر میں ایک صورت یہ بھی بیان کی تھی کہ جو کچھ تمام صورتیں ہیں ان میں ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک لیول ہو، جہاں لڑکا لڑکی اکٹھے کی بات آ رہی ہے وہاں پہ میں نے کہا ایک لیول ہونا ضروری ہے. جہاں دو یا دو سے زیادہ لڑکیوں کی بات ہے وہاں بھی میں نے کہا ایک لیول ہو، بیٹیوں کا لیول ہو یا پوتیوں کا ہو. اور جہاں ایک لڑکی ہے وہاں بھی میں نے کہا بیٹی ہو یا پوتی ہو یا اس سے نیچے. لیکن اگر ایسی صورت آ جاتی ہے کہ اولاد میں دو لڑکیاں ہیں لیکن ان کا لیول برابر نہیں ہے، ایک بیٹی ہے اور ایک پوتی ہے، اب کیا کریں گے؟ ایک بیٹی اور ایک پوتی کے لیے ہاں جی بیٹی کو آدھا ملیں گے اور پوتی کو جو تک باقی حصہ 2/3 پورا کرنے کے لیے. ہاں جی یعنی اگر ایک بیٹی اور ایک پوتی ہے تو قرآن نے کہا کہ دو یا دو سے زیادہ اگر عورتیں ہوں ان کے لیے 2/3 حصہ ہے. تو مجموعی طور پر یہ دو عورتیں ہیں تو انہیں 2/3 حصہ ہی ملنا چاہیے. لیکن چونکہ ان کا لیول برابر نہیں ہے تو اب یہ جو 2/3 حصہ ہے یہ انہیں برابر نہیں ملے گا. یعنی 6 لاکھ درکا ہے تو 6 لاکھ میں سے 4 لاکھ تو انہیں ملے گا، خواہ دو بیٹیاں ہوں خواہ دو پوتیاں ہوں. دو بیٹیاں ہوں انہیں 4 لاکھ ملے گا برابر برابر 2 لاکھ. دو پوتیاں ہوں انہیں بھی 6 لاکھ میں سے 4 لاکھ ملے گا 2 لاکھ. لیکن اگر ایک بیٹی اور ایک پوتی ہے یہ بھی دو، انہیں بھی 4 لاکھ ہی ملے گا. لیکن 4 لاکھ اب 2 لاکھ کر کے نہیں ملے گا، بلکہ بیٹی کو اس کا پورا حصہ 4 لاکھ. بیٹی کا کتنا حصہ ہے؟ کل ترکہ کا آدھا. تو بیٹی کو اس کے کل ترکہ کا آدھا یعنی 6 لاکھ میں سے 3 لاکھ بیٹی کا. اب کل ان کو 4 لاکھ ملنا تھا تو 4 لاکھ میں سے 3 لاکھ نکال لیں، باقی 1 لاکھ بچ گیا، وہ کل ترکہ کا چھٹا حصہ ہے. تو پوتی کو 2/3 مکمل کرنے کے لیے چھٹا حصہ دے دیں گے اس صورت میں. تو اگر 6 لاکھ ترکہ ہے اور ایک بیٹی اور ایک پوتی ہے تو بیٹی 3 لاکھ دے گی اور پوتی 1 لاکھ دے گی اور یہ مل کے 4 لاکھ بنے گا، باقی 2 لاکھ بچیں گے ان کے پورے سال کے لیے. تو یہ میں نے لکھا ہے کہ ایک بیٹی اور ایک پوتی کے لیے مجموعی طور پر کل ترکہ کا 2/3. یہ دوسری حالت بنتی ہے. یہ دوسری حالت سے مراد یہ جو میں نے نمبر لگائے ہیں دوسری حالت یہ ہے 2 یا 2 سے زیادہ لڑکیوں کے لیے کل ترکہ کا 2/3. تو یہ والی حالت بنتی ہے. تو فردی حصہ ہے لیکن اب چونکہ ان کا لیول برابر نہیں ہے اس لیے ان کو برابر نہیں ملے گا، دونوں کو برابر نہیں ملے گا، بلکہ بیٹی کو کل ترکہ کا نصف وہ تیسری حالت بیٹی کے لیے تیسری حالت بن جائے گی. جو بیٹی ہے اکیلی اس کے لیے تیسری حالت بن جائے گی، وہ کل ترکہ کا آدھا حصہ لے گی 6 لاکھ میں سے 3 لاکھ. جبکہ پوتی کو کل ترکہ کا چھٹا حصہ، جب بیٹی کو کل ترکہ کا آدھا دیں گے اور پوتی کو کل ترکہ کا چھٹا حصہ دیں گے تو ان دونوں کو جب جمع کریں گے تو یہ کل ترکہ کا 2/3 بن جائے گا. مثال کے طور پر اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل آپ کو میں نے بتایا تھا کہ حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلکہ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی پیش ہوا اور صحابہ کرام کے دور میں یہ واقعہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری کی خدمت میں پیش ہوا. کسی تابعی نے ان کے سامنے ایک مسئلہ پیش کیا کہ میت کے ورثاء میں بیٹی ہے اور پوتی ہے اور بہن ہے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. یہ وہی صحابی ہیں جو بہت خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں. ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو سیدنا علیہ السلام کے مزماروں میں سے مضامین عطا کیے گئے ہیں. تو جب ان کے پاس یہ مسئلہ پیش آیا انہوں نے فرمایا کہ بیٹی کو آدھا حصہ دے دیا جائے اور بہن کو آدھا حصہ دے دیا جائے. پوتی کو انہوں نے کچھ نہیں دیا، لیکن ساتھ ہی کہا کہ میں نے جو تمہیں مشورہ دیا ہے فتویٰ دیا ہے مجھے اس پہ اطمینان نہیں ہے مکمل.
सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद जो बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े इमाम हैं, उनसे जाके मेरे इस फतवा की तस्दीक करवा रहे हैं। अगर वो तस्दीक करें इसकी तो ठीक है, अगर वो तस्दीक न करें फिर जो वो बताए तो उनकी राय पर अमल कर रहे हैं। सैयदना इब्न मसूद के पास वो सवाल करने वाला गया, उसने तो सैयदना इब्न मसूद ने फरमाया कि अगर मैं भी यही फैसला करूँ कि बेटी को आधा, पोती को कुछ भी ना दूँ और बहन को आधा दूँ, फ़क़त ज़लन तो इज़म वमा अना मिनल मुहतदीन, तो मैं गुमराह हो जाऊँगा, हिदायत याफ्ता नहीं होगा। सैयदना इब्न मसूद ने फरमाया कि यही मसला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया था। ये सही बुखारी की रवायत तशरीफ से आपको बयान करा, सही बुखारी में मौजूद है तफसील से पूरा किस्सा। सैयदना इब्न मसूद ने फरमाया कि यही मसला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुआ था और आपने ये फैसला नहीं फरमाया। आपने क्या फैसला फरमाया था? वो ये आपके अल्फाज लिब्नतिन निस्फु, बेटी के लिए आधा हिस्सा है, वलिब्नति लिब्निस सुदुसु, और बेटे की बेटी के लिए यानी पोते पोती के लिए असुदुसु छठा हिस्सा है, तकमिलतन लिसुलुसैन, 2/3 मुकम्मल करने के लिए। ये कौन सा 2/3 है? ये वही 2/3 है जिसका कुरान पाक का जिक्र है कि फ़इन कुन्ना निसाअन फ़क़फ़नतैनि फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक, ये वो 2/3 है। उस 2/3 को मुकम्मल करने के लिए पोती को छठा हिस्सा दे दो, जो बाकी बच जाए वो बहन का है। बहन इसकी सूरत में असबा है, बहन के घर में मुसीबत पड़ेगी। अच्छा ये सवाल ये तो है ना, सिनारियो ये है कि अगर एक बेटी है और एक पोती है, या फिर 2 बेटियां हैं और एक पोती है। अब एक हो कि 3 बेटियां हैं और एक पोती हो या उससे ज़्यादा हो, तो उसके लिए भी तकमीलत सुलुसैन ही होगा या फिर उसके लिए महरूम हो जाएगी? उसके बारे में मार्कर नहीं मिला, मार्कर वो ला रहे हैं अभी। तो अगर एक बेटी और एक पोती है तब तो बेटी को आधा और पोती को छठा हिस्सा, जैसे इस हदीस मुबारक में सराहत है। तो ये हदीस मुबारक कुरान पाक की साइड की तशरीह करती है, सही बुखारी की रवायत। अब अगर 2 बेटियां और एक पोती, अब कहने को ये कुल कितनी हुई? ये भी औरतें हैं और औलाद में हैं, तो औरतों के लिए 2/3 हिस्सा है। तो ये सब के सब औरतें 2/3 हिस्से में शरीक है, लेकिन अब 2/3 हिस्सा कैसे देंगी? आधा बेटियां। अब जो 2 बेटियां हैं पहले वो अपना हिस्सा लेंगी क्योंकि वो ज़्यादा करीबी है, तो 2 बेटियों के लिए भी तो 2/3 ही होता है। 3 बेटियों का भी 2/3 है और 2 का भी 2/3 है, तो 2/3 सारा का सारा बेटियां ले लेंगी और पोती के लिए कुछ नहीं बचेगा। अगर 2 बेटियां हो और एक पोती हो तो 6 लाख में से 2-2 लाख हर बेटी को और पोती के लिए कुछ नहीं होगा। अगर मामला इसके उल्ट कर लें कि एक बेटी और 2 पोतियां कर लें, अब क्या सूरत होगी? अब बेटी को तो आधा मिल जाएगा पूरा, बेटी को तो आधा मिलेगा, बाकी उन दोनों को आधा। अब मुझे 2 पोतियां हैं वो छठे हिस्से में बराबर छठे हिस्से। असल में ये है कि जो ऊपर का लेवल है उसमें से कुछ बचा कि नहीं बचा, ये देखना है। अगर हाँ जी, मैंने असल में सूरत ये बयान की है, जो चौथी सूरत है इस पर गौर करें। एक बेटी और एक पोती के लिए तो मजमूरी तौर पर ये 2/3 की वारिस होगी, लेकिन इनको बराबर नहीं मिलेगा। पहले बेटी को उसको पूरा हिस्सा दिया जाएगा, बेटी का पूरा हिस्सा है आधा अगर अकेली हो, और पोती को छठा हिस्सा दिया जाएगा और 2/3 मुकम्मल हो जाएगा। इसकी दलील भी हदीस से मुबारक है। अब इसकी मज़ीद सूरतें बना लेते हैं। इसकी मज़ीद सूरत ये है कि अगर एक बेटी और एक पोती की बजाय 2 बेटियां और एक पोती हो, या 3 बेटियां और एक पोती हो, या 3 बेटियां 3 पोतियां हो, कोई भी सूरत हो, तो हम कहेंगे मजमूई तौर पर तो इन 6 की 6 ख़वानीन के लिए 2/3 हिस्सा है। लेकिन अब इनफरादी तौर पर हारे को बराबर नहीं मिल रहा क्योंकि सब बराबर की नहीं है। पहले जो करीबी हैं उनको देंगे, तो 3 बेटियां या 2 बेटियां हैं, तो 2 बेटियों और 3 बेटियों का पूरा हिस्सा अगर हम करें उनका 2/3 उन्हीं में मुकम्मल हो जाता है, तो पोती के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो बेटियों की मौजूदगी में पोती के वारिस होने की सूरत ये है कि बेटी एक ही हो। अगर बेटी एक होगी, पोती एक हो या ज़्यादा हो, वो वारिस हो सकती है। अब अगर सूरत ये बना लें कि 2 बेटियां और एक पोती की बजाय एक बेटी और 2 पोतियां, अगर ये सूरत बना लें तो इस सूरत में इन तीनों को मुश्तरका तौर पर तो 2/3 मिलना है। 6 लाख अगर कुछ करता है तो 6 लाख के साथ इसलिए पेश करता हूँ कि इसकी 6 लाख अगर कुछ करता है और एक बेटी और 2 पोतियां हैं, हम कहेंगे 4 लाख इनको मिलेगा। लेकिन अब कैसे मिलना है? 2 लाख अलग कर देंगे, 4 लाख इनको देंगे। अब उसको 4 लाख ऐसे देंगे कि बेटी को वही कानत वाहिदतन फलहा निस्फ के तहत आधा माल दे देंगे, 3 लाख। 3 लाख। अब बाकी 1 लाख बच गया, तो 1 लाख
अब ये नहीं कर सकते कि उन दो पोतियों में से किसी एक पोती को 1 लाख दे दें, क्योंकि वो दोनों बराबर की है। उनको आधा तो वो 1 लाख दोनों में बराबर कैसे हो जाएगी? 4,50,000। हाँ, अब एक तीसरी सूरत आ गई, वो ये है कि बेटी एक पोती एक पड़पोती। अब इसका जवाब आप खुद ही बता दें, इसी उसूल की रोशनी में पड़पोती को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस सूरत में बेटी और पोती मिलकर 2 बेटियों के ऊपर में हो जाएगी, और 2 बेटियों में 2 तिहाई मुकम्मल हो जाता है। ये बात तय है कि 2 बेटियों में 2 तिहाई मुकम्मल हो जाता है। अब जब 2 बेटियां बराबर की हो, उनमें 2 तिहाई मुकम्मल हो जाए, या एक बेटी और एक पोती में 2 तिहाई मुकम्मल हो जाए, अब पड़पोती के लिए मुश्किल है। तो अगर इससे जो पूरा मसला वाज़ेह हो गया कि अगर एक बेटी एक पोती एक पड़पोती है, तो बेटी को आधा हिस्सा और पोती को छठा हिस्सा 2 तिहाई मुकम्मल हो जाएगा, और पड़पोती के लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ समझने वाली है, वो ये कि अगर 2 बेटियां और एक पोती है, हमने जैसा शुरू में कहा कि इस सूरत में पोती को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 बेटियों में 2 तिहाई मुकम्मल हो गया। लेकिन अगर पोती के साथ पोता भी आ जाए, आप जरा गौर करें, असल में साबुल फराइज का एक फ़ायदा ये है कि उनका हिस्सा तो नहीं होता, लेकिन एक नुकसान भी है कि जो उनका हिस्सा मुकर्रर हो उससे ज़्यादा ले नहीं सकते। अब असबा का एक फ़ायदा भी है, एक नुकसान भी है। असबा को नुकसान ये होता है उनका हिस्सा बदलता रहता है। ऐसी सूरत भी आती है कि उनके लिए बचते कुछ नहीं है, लेकिन एक फ़ायदा उनको ये भी होता है कि बाकी सारे माल के वो वारिस होते हैं। अब अगर एक आदमी फौत होता है, उसके वरसा में 2 बेटियां, एक पोती और एक पोता भी है। अब जो 2 बेटियां हैं उनको तो हम आधा कर देंगे, 2 बेटियों के टाइम को रखेंगे, और जो पोती पोता है उनको हम पहली सूरत में ले आएंगे। ये जो पहली सूरत आपके सामने है, तो पोती पोता ये एक लेवल में है और ये असबा बन जाएंगे, और 2 बेटियां ये चूंकि उस पोते के साथ एक लेवल में नहीं है, ये उसके साथ असबा नहीं बनेगी, तो 2 बेटियों का अलग मामला करेंगे और पोती पोते का मामला अलग करेंगे। अब 2 बेटियों को हम फर्जी हिस्सा देंगे उनका, और वो है 2 तिहाई। अगर 6 लाख कुल माल है, तो 6 लाख में से 2 बेटियों को 2 लाख 4 लाख और बाकी 2 लाख बच गए। एक पोती और एक पोता है, तो अब वो असबा है। अब असबा की सूरत में हम नहीं कहेंगे कि 2 तिहाई से ज़्यादा मिल ही नहीं सकता, नहीं, असबा की सूरत में बाकी माल लेना होता है। अगर कोई और वारिस ना होता, बेटियां ना होती, पोती पोता होते, तो वो 6 के 6 लाख के वारिस होते। लेकिन अगर 2 बेटियां आ गई तो वो 2/3 हिस्सा वो ले लेंगी, 4 लाख वो ले लेंगी, 2 लाख, अब बाकी 2 लाख वो पोती पोता है। लेकिन वो दोनों को बराबर नहीं मिलना, एक और 2 पोते को डबल और पोती को 61, यानी 66,000 पोती को, और पोते को जो है वो 1,33,000 है। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि जो बेटा चूँकि पोता असबा है, तो होता ही है कि असहाबुल फराइज को मिलने के बाद असबा पूरा लेता है, तो असहाबुल फराइज 2/3 तो पूरा ले लिया ना, तो पोती तो वैसे ही महरूम थी इस केस में। लेकिन जब बेटा उसे असबा पूरा मिलना चाहिए था, बाकी ये बेटे को मिलना चाहिए, हाँ, पोती को नहीं मिलना चाहिए। असल में पोता जो है वो जब उसके साथ पोती आ जाए, पोता अपने साथ पोती को भी असबा में अच्छा, लाजमी असबा, चाहे उसको हिस्सा ना भी मिल रहा हो ना, तो पोता उसे फायदा पहुँचाता है। इसी तरह अगर यही सूरत हो, बेटी पोती पड़पोती और साथ पड़पोता हो, वहाँ भी यही सूरत होगी, बेटी आधा लेगी, पोती छठा हिस्सा लेगी, और पड़पोती और पड़पोता मिलकर असबा बन जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी सूरत वाज़ेह हो गई है। आगे से एक साल पिछले लेक्चर की हो रही थी जैसे, हाँ जी, मैंने ये बताया है कि अगर बेटियों में माल मुकम्मल हो जाए, अगर बेटियों में माल मुकम्मल हो जाए और पोती के लिए कुछ ना बचे, तो पोती वारिस नहीं होती। 2 बेटियां हो या 3 बेटियां हो, पोती वारिस नहीं होती, तो 2 बेटियां 2/3 हिस्सा ले लेंगी। लेकिन अगर साथ पोती के पोता भी आ जाए, तो अब असल में जब सिर्फ लड़कियां ही हो, वो असहाबुल फराइज होती हैं, और असहाबुल फराइज में उनका हिस्सा मुकर्रर है 2/3, उससे ज़्यादा नहीं ले सकती। अब कोई बंदा कह सकता है कि अगर 2 बेटियां हैं और एक पोती है, तो 2 बेटियों को 6 लाख में से 4 लाख दे दें, 1 लाख, अब बाकी 2 लाख बचा हुआ है, उसमें से पोती को कुछ दे दें। 2 बेटियां और पोती हैं, तो ये औरतें ही औरतें हैं, इन औरतों का हिस्सा 2 तिहाई से ज़्यादा हो नहीं सकता। मैंने बताया फर्जी हिस्सों में फ़ायदा भी है, नुकसान भी होता है कि वो हिस्से मुकर्रर हैं, उनमें कोई कभी बेची नहीं हो सकती। अब 4 लाख है तो 4 लाख ही देना, बाकी 2 लाख चाहे फारिग है, कोई और वारिस है